दुनिया की सियासत में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी सुपर पावर की धाक रखने वाला अमेरिका अब अपने ही फैसलों से घिरता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और टैक्टिक्स ने ऐसे हालात बना दिए जिनसे अमेरिका की वैश्विक लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह लग गया, जो कि जलेबी की तरह उलझी हुई दिखाई दे रही है। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बदलते वर्ल्ड ऑर्डर से ये ताकत अब कमजोर पड़ती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने एक एक कर अमेरिका के पुराने दोस्तों से रिश्ते कमजोर कर दिए। पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलना, ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ना और चीन पर लगातार व्यापारिक हमले, इन सब ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया है। उधर चीन, रूस और ईरान जैसे देश जो कभी एक दूसरे के खिलाफ थे, अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये नए गठबंधन बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां अमेरिका की भूमिका सीमित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति अल्पकालिक फायदे तो दे सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह अमेरिका की साख और नेतृत्व को नुकसान पहुंचा रही है। ट्रंप टैक्टिक्स: पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर, ईरान न्यूक्लियर डील खत्म, चीन पर व्यापारिक युद्ध, नाटो सहयोगियों से तनाव। नए गठबंधन: दुनिया के धुर विरोधी देश अब एक मंच पर, चीन, रूस, ईरान, अरब देश। ब्रिक्स का विस्तार, एशिया और मिडिल ईस्ट में नए गठबंधन। अमेरिका के लिए खतरा, नई सुपर पावर की तलाश। आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां, अमेरिका की घटती साख। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जाखारोवा ने कहा कि रूस और उसके साझेदार ऐसी संरक्षणवादी नीतियों से सहमत नहीं हैं। टैरिफ का असर नकारात्मक होगा। Noted the discriminatory use of tariff measures between participants of global trade and said that it could have long-term negative effects on the entire world economy. As a result of this policy, there may be an even greater increase in protectionism, a decrease in trade volumes, and an increase in inflationary pressure, especially in developing countries. Russia, as well as our partners from BRICS, EAEU, and the SCO, as well as the majority of countries in the world, do not share such protectionist approaches. That is why we continue to adhere to the agreed multilateral consensus on international trade rules, and we talk about it regularly. दूसरी ओर ट्रंप के खासम खास और वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो का हाल ही में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का बयान सामने आया। अब उन्होंने भारत को क्रेमलिन लॉन्ड्रोमेट करार दिया है, यानी कि रूस की वॉशिंग मशीन, जहां रूस के काले कारनामे धुल जाते हैं। नवारो यही नहीं रुके, बल्कि और दरझल का और बोले कि भारत हमारे हथियार नहीं खरीदता, वे रूस से हथियार लेते हैं। Now, what's startling about this is that prior to the Russian invasion of Ukraine in February of 2022, you know how much oil India bought from Russia? Just about zip, pretty close to zero, Dave. And then when Russia invades, they got to figure out a way to backdoor it. So India quickly transformed itself into basically a Kremlin laundromat for their oil. And so again, they send us their goods here. We can't send them theirs. We pay them a bunch of money. They use it to buy Russian oil. Then the Russians, what do? They use it to fuel their war machine, kill a bunch more Ukrainians, right? And then NATO and the Europeans, coupled with the United States, has to do what? We have to pony up billions more to protect Ukraine because India's giving Russia the money to. You see what I mean? It's like crazy. Yeah. It's just oil insanity math. And so there's no excuse for the world's largest democracy by population, which is India. Right. Getting in bed with the Russians, buying their oil, and then complaining when we add tariffs on that to have them stop doing it. Because India, look, the road to peace in Ukraine runs through a lot of places, and New Delhi is one of them. They buy about 1.5 million barrels of oil a day. You know how many drones
that buys for Russia to send their little bombs over to Kyiv? A ton. So they got to stop that. Yeah. That's the end of the story. It's the India story, and that's my story. I'm sticking to it, Dave. And I wish India would get the message on this, because they're a great country. Yeah. Modi's a great leader. They could be a great partner. Oh, one other thing, buried this kind of lead. They don't even buy our arms, and that would help balance our trade. They don't do that. You know who they buy them from? Right. The Russians. Yeah. इसी बीच जॉर्ज सोरोस ने ट्रंप की छवि को तार-तार किया और कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक धोखेबाज और अत्यधिक आत्मकेंद्रित हैं, जिनका संसार सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमता है। आपको बता दें कि चंद दिन पहले ही ट्रंप ने सोरोस को साइकोपैथ करार देते हुए सोरोस और उनके बेटे एलेक्स पर रिको चार्ज लगाने की मांग की थी और उन पर पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शनों के समर्थन का आरोप लगाया था। President Trump is a con man and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him. When his fantasy of becoming president came true, his narcissism developed a pathological dimension. टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए। उधर भारत अमेरिका के सामने डटकर खड़ा है और अपनी कूटनीतिक चाल से ट्रंप को कड़ा मैसेज दे रहा है। बीते 2 महीने में हिंदुस्तान ने कई देशों से अपनी मित्रता बढ़ाई है और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जब से अमेरिका से संबंधों में कड़वाहट आई है, तब से कई विदेशी नेताओं का भारत आना लगा हुआ है। इस लिस्ट में चीन, फिजी, फिलीपींस, कतर, कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इन मुल्कों के साथ भारत ने डील करके अमेरिका को संदेश दिया है कि आप टैरिफ बढ़ाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अन्य विकल्पों को देखेंगे और उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे। चीन से डन हुई डील। सबसे पहले बात करते हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे से। वांग अगस्त यानी कि इसी महीने भारत की यात्रा पर आए थे। ये वो दौरा था जिस पर अमेरिका और ट्रंप की खास नजर थी। वांग यी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए। भारत चीन ने सीमा प्रबंधन की नियंत्रण पर नया समझौता किया। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में संवाद तंत्र को फिर से शुरू करने, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने, बहुपक्षवाद को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने और एक तरफा धमकियों का विरोध करने पर सहमति जताई। कजाकिस्तान से इन मुद्दों पर बनी सहमति। कजाकिस्तान के प्रथम उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सुल्तान कमाल तदीनोव भी इस महीने ही शुरुआत में भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और सैन्य संबंधों का विस्तार करने के बारे में चर्चा की। फिलीपींस के राष्ट्रपति आए थे भारत। इस महीने की शुरुआत में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को लेकर व्यापक कार्य योजना का ऐलान किया। फिजी से इन मुद्दों पर बनी बात। फिजी के प्रधानमंत्री लिगामा मादा राबुका रविवार को भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। राबुका ने यहां से ट्रंप को मैसेज दिया। पीएम मोदी से मुलाकात में राबुका ने कहा कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे खुश नहीं, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन असहज स्थितियों को झेल सकें। राबुका की यात्रा के दौरान भारत और फिजी ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की और शांतिपूर्ण समावेशी हिंद प्रशांत के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की। कतर के मंत्री आए भारत। अमेरिका के तनाव के बीच कतर के ट्रेड मिनिस्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईद भारत की यात्रा पर आए। इस दौरे पर आने से पहले सईद ने इसी साल फरवरी में भारत के साथ नए व्यावसायिक अवसरों और निवेशकों पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा जताई थी। कतर और भारत के बीच कई वर्षों से विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत व्यापारिक और व्यावसायिक संबंध रहे हैं।
हालांकि वैश्विक व्यापार के तेजी से विकास और एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ कतर तेल और गैस से आगे भी अपना ध्यान केंद्रित करने की सोच रहा है। भारत के लिए खड़ा है ब्राजील। टैरिफ पर तनाव के बीच ब्राजील भारत के लिए ढाल बनकर खड़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ट्रंप को इग्नोर करके सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि वो ट्रंप से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और वही सबसे अहम संकेत है कि ये भारत उनका 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही भारत की कंपनियों का $6 अरब से ज्यादा ब्राजील में निवेश है। जापान से डील। जापान ने भारत में अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। भारत और जापान ने 17 सालों में पहली बार सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा की, जिससे भारत जापान के संबंध मजबूत हुए। सेमीकंडक्टर समेत इन 4 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। सुरक्षा सहयोग का रोडमैप तैयार होगा। क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में भी समझौता हुआ। सेमीकंडक्टर चिप, फार्मा सेक्टर में बढ़ोतरी पर भी समझौता हुआ। साथ ही रक्षा उद्योग अनुसंधान को भी बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। तो चलिए अब हम आपको बतलाते हैं ट्रंप के 50% भारत पर टैरिफ लगाने की वजह। ट्रंप ने क्यों लगाया टैरिफ? ऑपरेशन सिंदूर पर युद्ध में तीसरे पक्ष की भूमिका से भारत का साफ इनकार करना, जबकि ट्रंप इसका श्रेय लेकर शांति दूत के रूप में दुनिया के सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहते थे। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर बात आगे न बढ़ सकने के कारण भी ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। इस ट्रेड डील से भारतीय डेयरी एवं एग्रीकल्चर सेक्टर पर सीधा प्रभाव पड़ना तय है। इसलिए भारत इस डील के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज करा रहा है। ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की वजह रूस से तेल आयात करना बताई जा रही है, जो कि बहुत ही साधारण है, क्योंकि भारत ही नहीं स्वयं अमेरिका तथा विश्व के अन्य देश रूस के साथ निरंतर व्यापार कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका बदलते हालात में अपनी वैश्विक लीडरशिप को बचा पाएगा या दुनिया की नई ताकत इसे हाशिए पर धकेल देगी? देखना दिलचस्प होगा। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए और इसी तरह की रोचक खबरों के लिए देखते रहिए सलील संदेश, क्योंकि सही संदेश आप तक पहुंचाना ही हमारा है उद्देश्य।